ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਚੱਲ हाँ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ देखो, हाँ मेरी ऐप चल रही है ना, ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ऐप ਤੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੀਟਅਪ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜ਼ਨ ਤੇ ਇਨਪੁਟ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ, ਓਕੇ। ਆਈ ਗੈਸ that could be the reason, yes, I believe. ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜੀ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, 5 ਜਾਂ 6 ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਦੈਨ ਹੈ ਵੀ ਜਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮ। ਨਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਫ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਸਵਿਚ ਇਫ ਕਮਾਂਡ ਸਵਿਚ ਕਮਾਂਡਸ ਇਫ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਸੀ 2 ਮੈਂ 3 ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮ ਹੈ। ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਯਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਾ ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 1 2। ਉਹੀ ਯਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਨੀ ਵੇ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ, ਨੋ ਯੂ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਫ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਦੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਵੀ ਚੱਕ ਲੇ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਿ ਸਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਸੀ ਕੇਸ ਸਮ, ਇਹਦੇ ਸਵਿਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਮੈਚ ਮੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮ ਵਾਜ਼ ਐਂਟਰਡ, ਐਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫਾਲਟਲੀ ਕੇਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ डिफ़ॉल्ट ओके नहीं, आई हैव टू चेक। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। हाँ बेसिकली ਬੈਟਰ मैच मोस्टली यूज़ नहीं होता, बट ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਫ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਐਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੈਡ, ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨ ਬੋਥ ਆਰ ਟਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਥਿੰਗਸ, 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ओके, एंड आई वांट के इफ लाइक 1 इक्वल टू 1 की जगह ए और बी ले लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी, और ठीक है। अब ये कंडीशन तब चलेगी जब ए बी से बड़ा होगा, राइट। लेट्स टेक यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ओके। ना मेरे को ये चाहिए कि ए बी से बड़ा है, बट ए शुड बी ग्रेटर देन बी प्लस 2 ऑल्सो। या यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, विच इज़ 5, पर मैं चाहता हूँ कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए, ए डी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या तो मैं इसके अंदर उस तरीके से कंडीशन डिफाइन करूँ जो मैं इसके बाद बताऊँगा, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूँ। अब हमारे पास हमें पता है कि ए बी से बड़ा है, राइट। अब मैं चेक कर लूँगा क्या ए डी से बड़ा है, और मैं जो भी मेरे को करवाना है वो करा दूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट ठीक है, ए इज ग्रेटेस्ट, वी डन विद दिस, देन वी हैव, आप इसके अंदर अब हाँ लेट्स गो विद इंडेंटेशन नाउ। एलिफ लगा देता हूँ मैं, एल सी लगा देता हूँ यहाँ पे, एलिफ की जरूरत नहीं है। प्रिंट डी इज नहीं,
ए इज सेकंड ग्रेटेस्ट वट एवर, ठीक है, और यहाँ पे एक एल्स लगा दिया, प्रिंट ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 नंबर को कंपेयर ए का पता करने का फंक्शन बन गया कि ए ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, या जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर मेरे ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो क्या वो ये वाली एल्स चलाएगा या ये वाली एल्स चलाएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट, अच्छा लास्ट लगा अगर गर्ल्स होती है तो सीधी राह चला लेगा वो। लास्ट चला लेगा। अब इसका रीज़न क्या है कि जो ये एल्स स्टेटमेंट है ये इफ इस वाले इफ स्टेटमेंट की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेंटेशन है, व्हाट इंडेंटेशन इज, जो ये स्पेस है, इससे आपने एक वो कर दिया कि ये अब इफ के बाद जो भी इसका जो भी हमें करना है जो इसके स्कोप में है, जो कि इसका लोकल स्कोप है, वो इसके स्पेसेस के साथ आएगा, ठीक है। जो भी अब इफ के बेसिस पे होगा वो ये होगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, अब इसका इफ का ये वाली स्पेस है, अब इस स्पेस की लाइन में जो ये लाइन दिखा रहा है नीचे को बनती हुई, ठीक है, वो इसका स्कोप है और ये इफ के अंदर आएगा। अगर मैं इस एल्स को आगे कर देता हूँ ये एरर दे देगा क्योंकि इसके ऊपर कोई इफ डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और इसके स्कोप में मतलब कोई इफ नहीं है, पर ये इफ को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके स्कोप में मतलब जो भी है इसका स्कोप इतना ही है, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन वर्क्स ऑन इंडेंटेशन रेदर देन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है कि इसके अंदर ये चीज़ आती है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, इसके अंदर क्या चीज़ आती है वो हम स्पेसेस से डिफाइन करते हैं, वो उसके आगे होगा, ठीक है। इफ़ के अंदर जो भी चीज़ आती है वो इफ़ के आगे होगी। जैसे इफ़ इस इफ़ के अंदर प्रिंट आता है तो वो इस इफ़ के आगे है बाय डिफ़ॉल्ट। ये टैब दबाने की इक्वल होता है। अगर मैं चेक करूँ और यहाँ पे मैं टैब दबा दूँ तो ये स्पेसिंग मोस्टली हम टैब की इक्वल लेते हैं ताकि ईजियर टू अंडरस्टैंड और देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये होता है एक लोकल स्कोप बस, ओके। बाकी जब हम फंक्शंस वगैरह आएंगे तो मैं एक बार अच्छे से इस चीज़ को गो थ्रू करूँगा। अभी इसके बारे में इतना ही जानना, ठीक है। तो अब जो ये अब मैंने जो ये चीज़ करी है इफ़ के अंदर इफ़, वी कॉल दिस नेस्टेड इफ्स, ठीक है। बेसिकली नेस्टेड का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ के अंदर कुछ मतलब नेस्टेड इफ हो गया इफ़ के अंदर इफ़, ब्रांचेस लगा दी नीचे आपने, हाँ उसमें इफ हो गया, ठीक है। दिस इज नेस्टेड इफ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इतना क्यों करा, मेरे को बस अगर मेरे को ए इज ग्रेटेस्ट चेक करना है तो मैं यहाँ पे यहीं पे चेक कर लूँ, राइट, कि मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, क्या ए डी से बड़ा है, देन मैं ये हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एलएफ, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड ए लेस देन डी। यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब सेकंड बी से बड़ा है वो चेक करने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती, बट ओके। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, एंड सो यू हैव टू थिंग्स, एंड और, ठीक है। मेरे को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा एक बार, लेट मी जस्ट डेमोस्ट्रेट इट एक बार। I'll go with this with boolean one right now, ठीक है। print true and true, अच्छा इनपुट मैंने बंद नहीं करा, सो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, क्यों नहीं प्रिंट करा इसने, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ओके। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। सो बेसिकली 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। 4 केसेस में एंड में सिर्फ एक ही ट्रू होता है कि ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू आ जाता है। अगर मैं बोलूं कि हिंदी में कैसे एंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या 1 1 के बराबर है, और तो और नॉर्मल और भी तो और लगाते हैं। एंड में क्या होता है, जो कंडीशन 1 होती है
मैं तो बताता हूँ भाई प्रतीक भाई, एंड में क्या होता है, जो दोनों कंडीशन दे रखी है ना, जो एंड जिसके बीच में लगा हुआ है, वो दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए। ठीक है, समझ गया? मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, एक चीज एक लॉकर है सपोज करो, ठीक है, दो मियां बीवी का लॉकर है, ठीक है। वो कहता है लॉकर खुलेगा चाबी के साथ ही अगर दोनों की चाबी लगेंगी। समझ गए? तो हमने कहेंगे अभी प्रतीक और जो प्रतीक की वाइफ है ना, वो लगेंगे तो लॉकर खुलेगा। ठीक है, ये नहीं कि प्रतीक के पास चाबी नहीं है और भाभी के पास चाबी है तो लॉक खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए हमें। ठीक है, वो एंड डिफाइन करता है। ठीक है, अगर मैं लगा दूं कि प्रतीक का के पास चाबी है, ट्रू है, और भाभी के पास चाबी फॉल्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, नहीं फॉल्स। खुलेगा लॉक, नहीं खुलेगा ना। ओके अगर ठीक मैंने है। बोल दिया कि प्रतीक के पास चाबी नहीं है और भाभी के पास है, प्रतीक के पास फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू, फिर भी फॉल्स आएगा, लॉकर नहीं खुलेगा, ठीक क्योंकि ठीक है दोनों कंडीशन पूरे चाहिए हमें। तो ठीक है वो ठीक है। एंड का मतलब ये होता है कि जौन सी भी कंडीशन है दोनों को ट्रू होनी चाहिए, जी तो मैं आगे बढ़ूंगा, ओके तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस नदीप भाई बस, ठीक बोला ना मैंने, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अब हाँ सेम भाई। इसी तरीके से आ जाता है और, या ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में से एक ही कंडीशन को ट्रू होना होता है, ठीक है। हम्म कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा। तो इसमें चार केसेस में से सिर्फ एक में फॉल्स आता है, विच इज़ फॉल्स एंड फॉल्स। मतलब गेट खोलना है तो दोनों के पास चाबी नहीं है तो गेट नहीं खुलेगा। अब किसी भी एक के पास चाबी है तो खुल जाएगा, दैट्स ऑल। नहीं खुलेगा। या बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। अब ट्रू हो गया, एंड और इफ स्टेटमेंट्स हो गई हमारी, ठीक है। अब मैंने बेसिक इफ एल्स भी कर लिया हमने, ठीक है। आई थिंक फॉर लूप पे हम कल आएंगे, एक बार फॉर लूप में कल करेंगे एक बार नहीं इस नहीं नहीं, चीज़। कल ही करेंगे, हाँ नदीप हाँ, भाई, एक बार बिल्कुल इसका अपन हैंड, बिल्कुल। इसका हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए। हैंड, हाँ हाँ हाँ, इसका कैलकुलेटर हम कल बना के रखेंगे, हाँ, और मैं एक दो प्रॉब्लम दोनों खुद ही एक दो करेंगे। प्रोग्राम्स और लिख दूंगा उसमें जो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो बना ठीक है। लेना। कैलकुलेटर तो बना ही अब लेना। आप मोस्ट प्रॉब्ली नवदीप भाई, हम कैलकुलेटर तो बनाएंगे, एक आधा और बना लेंगे। अब एक आधा दे रहा गिरो, मतलब हाँ बाकी तो नहीं होगा। हाँ। हम जितना ट्राई करेंगे, दो तो हम बना के रखेंगे, दो मतलब कैलकुलेटर मैंने और एक, है ना? इनमें तो से आपको मतलब दो ही करने होते हैं एटलीस्ट, जो भी मैं दूंगा। एक हाँ तो हाँ 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 हाँ। सिंपल, जैसे इस बार कैलकुलेटर दे दिया, तो मैंने लास्ट टाइम जैसे सबसे सिंपल वाला इसमें दिया था ये वाला, ठीक है। अब आपने इनमें से कोई भी एक हम्म, बना के देख लेते तो आपको उसकी क्लियर हो जाती। अगर आप सारे बनाओगे तो आपको मोस्टली कमांड्स वो सही हो जाएंगी इसकी, ठीक है। तो इसमें मैं पाइथन में भी तीन चार ओके लिख ओके दूंगा, ओके। तो आप ठीक है उसमें से भी चेक कर लेना, क्योंकि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी जितना ठीक है टाइम मिले उस हिसाब से कर लेना वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ठीक है ठीक है, तो करेंगे तो। कैलकुलेटर। भाई वीडियो अपलोड कर देना एक बार यूट्यूब हाँ यार, पे ना एक बार, मैंने ताकि आज रिवाइज कर लूँ। रात को अपलोड कर दी थी, मैं लिंक भेज देता हूँ। बैच की कर दी थी और ये वाली कर हाँ दूंगा। या ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मुझे क्लास से पहले भाई वो कर देना, ताकि है ना या क्लियर हो जाए अपने को, और फिर हम फिर उससे आगे गो थ्रू कर लें, क्योंकि बेटर रहेगा, एक बार दोबारा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। या श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। ये कर देता हूँ मैं। ये एंड बिल्कुल बढ़िया नवदीप, बढ़िया, अच्छा चल रहा हमारा ये टॉपिक पाइथन का ना, बिल्कुल हमने बेसिक से समझाया चीजें। और कल को अपन ना जो क्लास में है वो ऑपरेटर्स का करा देंगे, उसमें आप ना छोटा छोटा टॉपिक सबने सबका समझा देना। जैसे बेसिक नहीं होते, हम कमांड बेसिक पढ़ते होते हैं एक लैंग्वेज की, कि भाई ये ऑपरेटर्स हैं, इसके हाँ, बाद मैंने हमारा ये वही लॉजिकल वही ऑपरेटर्स होते बेसिकली हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे को, ये मैं लूप्स अभी हैं, लूप्स अभी उससे कितने टाइप की लूप्स हैं। मैं ये अभी ना सोच रहा हूँ कि पहले आपको थोड़ा सा पाइथन के बेसिक्स बता दूँ, ठीक है। बता एक बार रहा, बिल्कुल पाइथन पे बिल्कुल आप बिल्कुल प्रोग्राम्स लिखने लग जाओ, तो उसके बाद क्योंकि बिल्कुल। ऑपरेटर्स में कुछ चीज़ आती है, जैसे प्रेसिडेंस आ जाती है ऑपरेटर्स की, राइट। हाँ ये सब चीज़ें फिर मैं सोच रहा हूँ उसके बाद करूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही है सही है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ठीक ऑपरेटर्स जा रहे पढ़ाने हो। ही जाऊँगा तो ऑपरेटर्स के जो भी आसपास के टॉपिक्स मैं सारी बता दूंगा। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब एक यस। बार ना बताता हूँ आपको, प्रतीक भाई के लिए भी हमने क्या करना, स्टार्टिंग में हमने बताना है कि एक लैंग्वेज के बेसिक में क्या क्या होता है, आइटरेशन होती है इसमें, है ना, हाँ हाँ अपना हाँ हाँ, लूप्स होते हैं, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, और लूप्स कौन से होते हैं, है ना, और दोनों का फर्क क्या आपस में, है ना, बस ये बिल्कुल चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेस से अपन स्टार्ट करेंगे कल को। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा नदीप भाई अपना। बिल्कुल भाई। हम कल को कैलकुलेटर ये चीज करते हैं, है ना, हाँ और जी हम हाँ जी। कंटिन्यू करते हैं कल को।